So I will give you simple hint. Either you can have an acute leukemia, either you can have a chronic leukemia. Any acute leukemia can be of two types: lymphoid origin, myeloid origin. All the acute myeloid leukemias will involve most of the time gamma hyperplasia and one more thing called as scleroma. Okay, these are the clinical features. Then next important thing, all the acute leukemias will have CD34 positive. So now imagine CD34 positive. It can be myeloid, it can be lymphoid. So myeloid के अंदर you have gamma hyperplasia, okay, and lymphoid के अंदर you have what is that, neuroleucosis. Myeloid leukemia is classified with the help of FAB classification, French American British classification. इसके अंदर RR positive will start from M3. Okay. Now we are talking about anywhere RR positive, the drug of choice will be retinoic acid, because RR positive, that means retinoic receptors are what? Retinoic receptors are sensitive disease. Then we are studying about what? Acute lymphocytic, lymphoblastic leukemia. It will have PAS positive, CD34 positive, CD19, CD316 can be positive. Okay. In all the myeloid leukemia, be it acute, be it chronic, दोनों में एक एंजाइम पॉजिटिव होता है MP. Then we are studying about chronic leukemia. Chronic leukemias can also be divided into myeloid origin and lymphoid origin. Lymphoid origin only called as lymphoma. Lymphoma can be non-Hodgkin's origin. Non-Hodgkin can originate from any of the lymph node, which can originate from T lymphocyte, B lymphocyte, NS. तो आप लोगों को भी studied about lymphoid for lymph node contained that is your medulla surrounded by cortex. Cortex contains follicle, follicle के अंदर B lymphocyte होते हैं, follicles are surrounded by T lymphocyte. तो any leukemia which originate from the B lymphocyte, it should be where is that, follicle के अंदर से. तो follicle के अंदर we had three layers: marginal, germinal, and we have mantle zone. Middle one is mantle zone, outer one is marginal, inner one is germinal. Germinal center से originate होता है Burkitt lymphoma. It is originated as a result of mutation of CMYC. So इसको भी और simplify करना है. Any leukemia, acute हो सकता है, chronic हो सकता है. Acute के अंदर दो possibility, lymphoid हो सकता है, myeloid हो सकता है. Chronic के अंदर दो possibility, lymphoid हो सकता है, myeloid हो सकता है. So anywhere, be it acute myeloid, chronic myeloid, दोनों में one enzyme, common enzyme will be MP. Any lymphoid के अंदर आप लोगों को PAS will be positive. Acute lymphoid, be it chronic. But if you want to call any leukemia acute, you need to have CD34 positive or you need to have blast cells positive, then you are going to call it as acute. So this much, if you are able to differentiate, everything will be easy. So any case of acute leukemia, that means CD34 positive. Then you look for MPO positive or negative based on the leukemia. Oh, if that is not there, अगर direct question है, c-MYC gene mutated in Burkitt. c-MYC gene mutated in Burkitt lymphoma originate from germinal cell. कौन से appearance? Star cell. Then you have, for example, they asked you what is CML. CML के पूरे कहानी. So it is because of one point you need to remember. Philadelphia chromosome. Philadelphia chromosome में 922 translocation, because of which an enzyme tyrosine kinase के वजह से all the myeloid cell बढ़ जाता है. So that is what is the CML. CML के अंदर आप लोगों को किसका एनालिसिस करना पड़ेगा? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एनालिसिस करने के लिए फिश कौन सी टेक्निक करोगे? फिश. दैट इज द स्टोरी ऑफ सिस्टम. AML का कहानी, AML का पूरे कहानी इज वेरी सिंपल. ब्लास्ट सेल पॉजिटिव, MPO पॉजिटिव, अलॉन्ग विद दैट गामा हाइपरप्लेसिया. ठीक है. ब्लास्ट सेल पॉजिटिव, MPO नेगेटिव, न्यूरोल्यूकोसिस, ALL, acute lymphoblastic leukemia. Okay. Then we have CLL. CLL के अंदर दो चीज, Hodgkin's है ना. Hodgkin's के अंदर कौन सी सेल दिखते हैं? Reed-Steinberg cell. Reed-Steinberg cell will be uninucleated or multinucleated? Multinucleated. Reed-Steinberg cell is more prone to get affected with which virus? EBV. Which virus? EBV. So in your body, पूरा body के अंदर, I want you people to understand EBV and one more. This is the extra point apart from the leukemia. Epstein-Barr virus and one more virus called CMV. These two viruses can cause the same infection called as infectious mononucleosis. कभी भी confusion मत होना. Infectious mononucleosis is a disorder in which your reticuloendothelial system बोला जाता है. That is nothing but पूरा तुम्हारा lymphatic system will get affected by any of these two viruses. Which are those two viruses? EBV और CMV. दोनों के अंदर क्या होता है?
टिपिकल लिम्फोमोनोसाइट। क्या दिखता है? ए टिपिकल लिम्फोमोनोसाइट। ये बात सोच रहे हो? मोनोसाइट इज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द माइलॉइड ऑरिजिन, लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट फ्रॉम द लिम्फॉइड ऑरिजिन। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहेगा, दैट इज ओनली कॉल्ड एज ए टिपिकल लिम्फोमोनोसाइट। मतलब दोनों का आधा आधा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, दैट इज ओनली कॉल्ड एज lymphomonocyte. A lymphomonocyte along with that infectious mononucleosis can test करते. What is the name of the test? Can anybody tell? एक question है. What is the test we use for infectious mononucleosis? Paul Bunner test. कौन सी है? Paul Bunner test. ठीक है? चलो. Schilling test कहाँ यूज करोगे? B12. Pernicious anemia. कहाँ यूज करोगे? Pernicious anemia. TABC काम पे कैलकुलेट करना है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की एनीमिया क्रोनिक डिसऑर्डर एसिडी को डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, वेयर डू यू कैलकुलेट द HbF and HbA2 को? मतलब क्वांटिटी ऑफ HbA2 and Thalassemia. Thalassemia because HbA2 is specifically formed in thalassemia. HbS is a characteristic of sickle cell anemia. सिक्स्थ पोजीशन में ग्लूटामेट रिप्लेस बाय वैलिन इज कॉज्ड बाय सिकल सेल। तो पूरे के पूरे हेमेटोलॉजी ये जो वीडियो अभी बनवाए हैं हम लोगों ने, इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में डाल देता हूँ, तुम लोगों को आसान हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। जिसने क्लास अटेंड किया उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाहर वालों का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जो हेमेटोलॉजी अटेंड किया उन लोगों को तो इजी होना चाहिए। ठीक है, चलो विद दिस मच बीइंग सेड, जस्ट गिव मी सो ऑलरेडी आई गेव यू ऑल द की पॉइंट्स, सब कुछ हो गया। तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स ताकि मैं तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता सकूं। ल्यूकेमिया का जितने भी पढ़ाऊं आप लोग क्या करोगे, ये पूरा दो पेज रटने के लिए बोलूंगा, फिर भी जाओगे तुम वहां जाके गलत कर ही दोगे। अरे भाई पता है मुझे, जब पता है तो सुनो। फर्स्ट थिंग, एनीवेयर देयर इज ए ल्यूकेमिया, एनीवेयर देयर इज ए ल्यूकेमिया, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी इंक्रीज ऑफ TLC। ठीक है, so listen, first thing, search for a word called as anywhere if they have mentioned the blast is present or absent. If blast is present, then it is blast present है तो then it is a acute leukemia. That's it. Blast present है तो क्या बोलोगे? Acute leukemia. कुछ भी दिखे, acute के अंदर you can have two possibilities. एक possibility हो सकता है all the acute leukemias के अंदर common point is CD34 positivity. ठीक है ना, इसके अंदर यू हैव MPO पॉजिटिव हो सकता है, यू कैन हैव गम हाइपरप्लेसिया, यू कैन हैव क्लोरोमा। उसके अलावा यू माइट बी हैव इन द क्वेश्चन व्हाट इज दैट ऑल ऑफ। इसके अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा डायग्नोसिस एक्यूट माइलोब्लास्टिक। ठीक है, अगर CD34 पॉजिटिव इज देयर, दैट मींस इट इज ए ब्लास्ट। तो इसके अंदर MPO नेगेटिव, PAS पॉजिटिव, अलॉन्ग विद दैट न्यूरोलिम्फोसिस हो सकता है कि न्यूरोलिम्फोसिस एंड वन मोर कंडीशन इज टेस्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। और ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर सकते हैं व्हाट इज दैट, दैट इज लिम्फोब्लास्ट। अब डॉक्टर कुछ मत सोचो, सीधा मार्क करो एक्यूट लिम्फोब्लास्ट लिखो। सो व्हाट इज दैट, ALLT। डॉक्टर साहब आप लोगों ने क्या लिखा, ब्लास्ट। अगर ब्लास्ट सेल का उसके कुछ भी बात ही नहीं है, ब्लास्ट सेल्स आर एब्सेंट। ये ब्लास्ट सेल्स आर एब्सेंट मतलब क्या हो जाएगा, क्रोनिक हो जाएगा। तो क्रोनिक के अंदर दो ही पॉसिबिलिटी, क्रोनिक माइलॉइड हो सकता है, क्रोनिक लिम्फोइड। ठीक है, तो दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस व्हाट वी CML के अंदर पॉइंट्स टू रिमेंबर, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम वो क्या उनसे होता है 922 ट्रांसलोकेशन। देन इसके अंदर और क्या होता है, कौन सी अपीयरेंस दिखता है, वो बर्किट लिम्फोमा, गार्डन पार्टी अपीयरेंस, गार्डन पार्टी। इसके अंदर CLL के अंदर क्या हो सकता है, इट विल बी हैविंग अ लिम्फ नोड की हिस्ट्री दिया होगा है कि नहीं, अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर CD मार्कर्स विल बी व्हाट इज दैट 90 या CD3 या CD16 या CD56 पॉजिटिव। इसके अलावा डॉक्टर साहब
कोई भी क्रोनिक लिम्फोइड CML के अंदर MPO पॉजिटिव हो सकते हैं, यस, इसके अंदर भी MPO पॉजिटिव हो सकते हैं। CLL के अंदर MPO विल बी नेगेटिव, MPO विल बी नेगेटिव। देन टक्सम इसके अंदर भी PAS क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा और भी चाहिए आप लोगों को, देता हूँ, ले लो भैया हिस्ट्री और भी देता हूँ पॉइंट का। कौन सी है पेरिफेरल स्मीयर के अंदर, स्मर्ट से, ठीक है। इसके अलावा ड्रग ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेगा, आर नॉट पॉजिटिव फ्रॉम एनीवेयर, रेटिनोइक एसिड, एनीवेयर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव, टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर, दैट इज इमैटिनिब, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी अदर ल्यूकेमिया दिया भैया, साइटोस्टैटिक ड्रग स्टेरॉइड के साथ ड्रग सच एज साइक्लोस्पोरिन, मेथोट्रेक्सेन, ठीक है, वी हैव स्पेशल रेजिन्स, उसके बारे में कंफ्यूज करनी है, चिंता करनी नहीं, हमें डायग्नोस करना, ठीक। देन आप लोगों को ऐसा ये टेक्निक है। दूसरा टेक्निक इज दैट विद द हेल्प ऑफ MPO, तो डॉक्टर साहब आपका क्वेश्चन के अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, बिकॉज MPO इज ए क्वेश्चन ओरिएंटेड के अंदर बहुत वाइडली यूज्ड है इसकी, MPO बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। MPO देखो, ठीक है, MPO कैन बी टू ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी MPO पॉजिटिव, एक पॉसिबिलिटी MPO नेगेटिव। MPO नेगेटिव आ गया, दैट मींस इट इज अ लिम्फोइड ल्यूकेमिया, MPO पॉजिटिव आ गया, माइलॉइड। तो माइलॉइड के अंदर दो हो सकता है, AML CML और CML। तो CML को कैसा डिफरेंशिएट करें, AML के अंदर लास्ट सेल CD34 और CML के अंदर लास्ट सेल CD34। लिम्फोइड के अंदर दो पॉसिबिलिटी, अगेन व्हाट इज दैट इज अगेन CLL एंड ALL के अंदर फिर से ब्लास्ट सेल विल बी एब्सेंट, इसके अंदर ब्लास्ट सेल विल बी प्रेजेंट, बस। एंड इसके ऊपर से R टाइप देना, इसके अंदर PAS खत्म हो गया, कुछ भी कहीं से भी दे दो, ठीक है। इसके अलावा रखना है कौन सी, ये जो मैं टेबल दिया ना, ये टेबल को भी तुम्हें आता है तो सब कुछ हो, ठीक है, डन विद द ल्यूकेमिया। सो पूरे हेमेटोलॉजी के अंदर से कैसे कुछ भी करके आप लोगों को याद रखना है दो क्या है। एनीमियास के बारे में ऑल द फैक्टर, B9 के अंदर क्या बढ़ेगा, सिर्फ होमोसिस्टिन। B12 के अंदर कौन बढ़ेगा, MMA बढ़ेगा, MMA अलॉन्ग विद दैट होमोसिस्टिन विल बी एलिमिनेटेड। खत्म, हटा दो उसको। शिलिंग टेस्ट का पर्निशियस का, GAT एसोसिएटेड एनीमिया विद B12 डेफिशिएंसी, दैट इज पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। तो देन वी हैव, ठीक है, then we have next thing, IDA के अंदर main hair along with that iron deficiency can be two, one of them is IDA, another one will be ACTH, another one will be hemorrhage के अंदर काट फूट किया हो तो कट किया हो, स्टैब किया हो, कुछ भी किया हो, अगर अल्सर हो गया, hemorrhage हो गया, ठीक है। अब बचाइए क्या है, एंजाइमोपैथी, थैलेसीमिया, ऐसे ही एंजाइमोपैथी, हीमोग्लोबिनोपैथी। एंजाइमोपैथी के अंदर G6PD डेफिशिएंसी, हैंड्स बॉडी वाइट्स, खत्म। कहीं पे भी स्क्रीन गया है, हवेल जॉली बॉडी का रंग क्या होगा, ब्लू होगा, ब्लू, क्योंकि न्यूक्लियस करेक्ट, ठीक है, न्यूक्लियस करेक्ट। अगर मान के चलो व्हाट इज दैट, फॉर एग्जांपल देयर वाज ए पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया, उसका ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, मोस्ट कॉमन कॉज साल्मोनेला, ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, दैट इज व्हाट इज दैट, स्टैफोइडियस। एंड किसी को भी ये क्वेश्चन रिकॉल नहीं हुआ, मेरा भाई भगवान जाने कैसे रिकॉल नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑस्टियोमाइलाइटिस का सिम्पटम दिया हुआ था, ठीक है, एंड देयर वाज अ क्लियर कट ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। एंड मैं पहले सिम्पटम देख के पूछ क्या रहा है, समझ में नहीं है, नीचे देखा सिकल सेल एनीमिया, अच्छा कहाँ है साल्मोनेला, और वो ब्रिलियंट क्वेश्चन ही पुट फर्स्ट ऑप्शन में स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस हम क्या मार्क कर देंगे, स्टाफ ऑरियस। तो ही पुट द स्टाफ ऑरियस टू कंफ्यूज थिंकिंग दैट व्हाट इज दैट, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस डायग्नोज भी कर लिया, अगर सिकल सेल एनीमिया नहीं किया फिर भी डूबेगा। तो दैट्स हाउ योर क्वेश्चंस आर गोइंग, तुम्हें उतना भी डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि उतना पास वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो सिंपलीफाइड होगा। जितने भी मैं हाईलाइट करवाया वो पॉइंट्स मैक्सिमम कितने, 2 पेज के अंदर, 2 या 3 पेज, 2 पेज ल्यूकेमिया, 2 पेज एनीमिया, ये पॉइंट रट के जाओ। उसके साथ में 3 लाइन है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A डेफिशिएंट एंड वैनिलिन, ये चीज़ रट के गए तो 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन,
मजाक नहीं कर रहा हूँ, यू विल गेट 10 क्वेश्चन। कोई भी इतना शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, इतना शॉर्टेस्ट इसके अंदर कहीं भी जगह तुम्हें 10 क्वेश्चन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी पढ़ने से आज रात को अभी घर जाके इमीडिएटली आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा जो भी टाइम लगे रिवाइज करो। रिवाइज करने से पहले रूल नंबर 1 क्या करना चाहिए, पहला वो जो फोटो है ना, कौन सी सेल कहाँ से बनता है, उसको 2-3 बार देख लेना, उसके बाद जाके हेमेट समझ में, ठीक है। वंस यू स्टडीड हेमेट, जो हाईलाइट करवाए तो वो पढ़ लिया, वो पढ़ने के बाद अगर तुम्हें याद हो जाता है देन यू स्टडी ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। मतलब क्या हो गया यार, कुछ भी याद ही नहीं हो रहा है, तुम्हें AML CML डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तुम बर्किट लिम्फोमा पढ़ के क्या ही कर लो। अगर वो पूछ लिया बर्किट लिम्फोमा बिलोंग टू व्हिच ल्यूकेमिया, a lymphoid leukemia to myeloma, lymphoid because it is originating from the lymph, it is originating exactly from the follicle, follicle के अंदर कहाँ से, जर्मिनल से। देख अगर जीन पूछा सीमिक जीन, ठीक है, सो दिस वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगर सीमिक जीन तुम लोगों को याद हो गया तो लेट मी गिव यू वन मोर चीज, that is called as auxin। कौन से, auxin। ऑक्सिन किसके लिए कोड करते हैं, कौन सी एंजाइम के लिए। ऑक्सिन इज रिस्पांसिबल फॉर द कोडिंग ऑफ NADPH ऑक्सीडेज। अगर NADPH ऑक्सीडेज नहीं है तो RBC के अंदर किलिंग होगा कि WBC के अंदर किलिंग होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज़ किलिंग ऑफ द WBC O2 डिपेंडेंट किलिंग will occur with the help of NADPH ऑक्सीडेज। NADPH ऑक्सीडेज will cause what, phagocyte ऑक्सीडेशन, O2 बस, उसके वजह से कौन सा आयन अंदर आएगा, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड से कौन से सिस्टम के अंदर जाएगा, NPO हैलाइड सिस्टम। NPO हैलाइड सिस्टम विल फॉर्म, एक पॉइंट तो याद होनी चाहिए, व्हाट इज दैट, OCl-। दिस इज ओनली कॉल्ड एज मोस्ट एफिशिएंट बैक्टीरियोसिकल एजेंट। समझ गए बात, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे हेमेटोलॉजी के अंदर। आप देख रहे हो कितना क्वेश्चन है, कम से कम पीजी एग्जाम के अंदर भी कम से कम एज मच एज आई कैन सी फ्रॉम द पोस्ट वगैरह सारे चीज़ों को रिकॉल करके देख रहा हूँ तो आई कैन सी मिनिमम ऑफ 10 to 15 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द हेमेटोलॉजी, ठीक है। हेमेटोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आए थे pretty much everything was in our FMG notes। अरे पीजी के क्वेश्चन ही हमारे यहाँ पे क्लियर कट